was there any specific reason that you joined the army? 1971 की लड़ाई हुई थी। देश भर में जुनून था कि भाई फौज में जाना चाहिए। तो माय मदर शी वाज अ विडो, सो आई सेड एक बेटा मेरा भी फौज में होना चाहिए। Should the non-Sainik school up their level of the exposure to the armed forces? The military training disciplines the children, and for any nation to progress, discipline is a must. Does being in the army makes you rough and tough, emotionless? Once we are in Fauj, we understand that this is life once given and it has to be lived to the best. You don't know what's going to happen. That doesn't mean we are afraid of death. How do army people deal with the loss of a fellow soldier? You are deeply hurt inside, but the address to the troops was, देखो आज अपने दोस्त शहीद हुए हैं इस देश के लिए, इनकी जो शहादत है हम खाली नहीं जाने देंगे. And we pep them up. We don't cry when we lose. We feel bad. All right. What is it that Aam Aadmi should know about the armed forces? For us, the nation comes first, always and every time. जब हम देश को प्राधान्यता दे रहे, आप क्यों नहीं दे सकते? उतना तो करो यार. Respect your nation. Only on 15th August and 26th January taking a झंडा and roaming. That is not national pride. फौज में सबसे बड़ी चीज है भाईचारा, camaraderie. हमारी एक ही जात थी, फौजी है, हमारा एक ही भगवान था देश। फौज के दौरान -50 डिग्रीज पे भी काम किया, +50 डिग्रीज में भी काम कर रहे हैं। आखिर शरीर एक मशीन है भैया। हम कसम लेते हैं आखिरी दम तक देश के लिए लड़ूंगा, और लड़के जीत नहीं सका तो खाली वापस नहीं आऊंगा, मर के वापस आऊंगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे हम सब के पसंदीदा द पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है द बोला भारतीय शो, और मैं हूं आपका होस्ट सतीश सुंदरेशन। दोस्तों, आज का एपिसोड सही मायने में सुपर 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 स्पेशल होने वाला है। कारण भी मैं बता देता हूं। आज हमारे बीच में जो सज्जन मौजूद हैं, ही इज जस्ट नॉट अ गेस्ट। इन जैसे कई सारे ऐसे जेंटलमैन लोग हैं, जब हम द कॉमन मैन, द सिविलियन, दिन भर या रात में आराम से सोते हैं, दे आर बिजी safeguarding our motherland, our nation, Mother India. Join me in welcoming our guest for the show today, Colonel Suhas Jatkar, retired missile engineer from the Indian Army. Welcome to the show, sir. Namaste. Thank you so much, Satish. It's my pleasure to be on your show, and I'm delighted for that. Thank you so much, sir. Sir, joining the Indian Army especially, हर बच्चे का सपना होता है, लाइक बीइंग कॉल्ड एज अ आर्मी चाइल्ड और द आर्मी किड और द आर्मी गाय, लाइक किसी किसी का होता है कि नाम क्या कि डॉक्टर जोड़े या फिर, बट मोस्टली आप देखोगे कि लाइक बीइंग कॉल्ड एज अ आर्मी चाइल्ड, या और मैं आर्मी स्कूल से हूँ, आई एम फ्रॉम द आर्मी, दैट गिव्स अ डिफरेंट हाई. सो वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन दैट यू जॉइन द आर्मी, और लाइक आपका लेगेसी चल रहा है, आपके मदर या फादर या फिर ग्रैंडफादर फ्रॉम द आर्मी, सो दैट लाइक आपने वो परंपरा कंटिन्यू किया है? सतीश, आई एम फ्रॉम फार्मर्स बैकग्राउंड. हमारे घर में तो खेती होती थी, पर क्या हुआ था, 1971 की लड़ाई हुई थी. तब देश भर में जुनून था कि भाई फौज में जाना चाहिए. तो माय मदर हु हैड 6 चिल्ड्रन, शी वाज अ विडो, आई हैड लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज अ ईयर ओल्ड. शी केम टू द स्कूल and spoke to my teachers and my headmaster. I said, एक बेटा मेरा भी फौज में होना चाहिए, मुझे मदद कर दीजिए. And that time I was in the 5th, so the teachers took interest and made me join Sainik school, because that time I hardly knew anything about Fauj. Once having joined Sainik school, I came to know the defense forces very closely. We had the principal who was from Air Force. We had the headmaster who was from Navy. We had the registrar who was from Army. So all the 3 wings we were exposed to. We had seen guns, we had seen ships, we had seen the Air Force, planes. And naturally, with the military training and your exposure, we were motivated to join the defense forces. And another thing which really happened, I mean, the same question is asked to me in my interview also for the Services Selection Board. I said, look, sir, yes, I like to serve the nation. Like, there's something from your journey from birth to death. Something which comes in between is nation. Wow. And if you get an opportunity to serve the nation, that too in defense forces, where you are
expected to make the ultimate sacrifice of your life, wow, that would have been great. Then secondly, I said, as I told you, we are 6 children. All the 5 siblings, they're settled. My mother was looking forward to when this guy will settle down. And the earliest I could settle down in life was joining NDA at the age of 15 and a half. Oh. So that was one, these are the 2 main motivational factors which helped me join the defense forces. ब्रिलियंट सर। आप अभी बोले कि आप सैनिक स्कूल में थे और आपने ये भी कहा कि सैनिक स्कूल में आपको जो एक्सपोजर मिला वो कहीं ज़्यादा था। सर लाइक यू नो मी एंड देयर आर पीपल लाइक मी जो सैनिक स्कूल के बारे में सुने हैं, हमको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो लाइक हमारा एक्सपोजर इज ओनली थ्रू व्हेन वी मीट पीपल लाइक यू, न्यूज़पेपर्स या फिर गूगल वगैरह। सो मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपको लग रहा है कि जो नॉन सैनिक स्कूल है वो लोग आर्म फोर्सेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो एक्सपोजर आप लोगों को मिला और अभी एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स में मिलता है, तो शुड द नॉन सैनिक स्कूल अप देयर लेवल ऑफ द एक्सपोजर टू द आर्म फोर्सेस अमंग्स द स्टूडेंट्स राइट नाउ? See, it's like this, yes. If you see the conditions of 1971, we hardly used to read newspapers. Okay, the only means of knowing things was news on radio, which we used to hear. Now you got Google, you got YouTube, you got so many social media platforms. You see TV, you see operations, you see wars. Yes, now that motivates the boys. Now the thing which stops or which separates the Sainik school boys and non-Sainik school boys is the military training. Correct. So I don't think the children need to go to Sainik school only to get the military training. The military training disciplines the children, disciplines the next generation which is going to make this nation and take it forward. And for any nation to progress, discipline is a must. Whether you join the defense forces or not, I feel that military training and exposure to military training at earlier stages in life is good. And you'll be surprised to know that in Maharashtra, every district has got a Sainik school of the state government. Awesome. And there are private, and now this year, the 4 Sainik schools, 4 boarding schools have been approved for Sainik school curriculum, wherein they have been funded by the central government and the state government. So, मतलब देश का भविष्य, मतलब जो बच्चे हैं वो जब 10th आएंगे तो उनका भविष्य तो 100% उज्जवल होगा ही होगा। लाइक काइंड ऑफ आप जो हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट जो बढ़ावा दे रहा है बच्चों को सैनिक स्कूल के माध्यम से। बिल्कुल 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 परफेक्ट सर। लाइक यू नो, अगर मैंने मेरे फ्रेंड्स को कहा कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, लाइक यू नो, वो सर्कल में मैं एकदम बेताज बादशाह कहलाऊंगा। लाइक यू नो, वाह, हमारे बीच में कोई बंदा है, हमारे में से कोई एक है जो आर्मी का सिलेक्शन हुआ है। सो जब आपने ये न्यूज़, और ना सिर्फ ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर किसी का लाइफ में है, बिकॉज आर्मी इज दैट बेंचमार्क, इज दैट पैरामीटर ऑफ प्रेस्टीज। एक बार आपका आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है, यू गेट ऑन टू अ डिफरेंट लीग। तो जब आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ और आपने जब ये न्यूज़ अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर किया, सो उनका क्या प्रतिक्रिया थी इस न्यूज़ के प्रति? और जब भी आपका सिलेक्शन होकर आपका जब पहला कदम, पहला दिन आर्मी में, इंडियन आर्मी में रखे थे, सो अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो प्लीज़। देखो, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं एक बहुत रिमोट विलेज से हूँ, बुल्डाना करके, 71 में तो काफ़ी रिमोट था, और हमारे गांव में लोगों को तो सबसे सीनियर फौजी पता था हवलदार। ओके। तो जब मेरी माँ ने लोगों को बताया कि भाई ये मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बनने जा रहा है, they didn't know what लेफ्टिनेंट was। कहते ये हवलदार से छोटा होता है या बड़ा होता है? So they're that innocent. Yes, my mother was very delighted, my family was very delighted, and my friends and colleagues who had knowledge said, wow, this guy has made it to India and he has become a lieutenant now. They're surprised. Then there were mixed feelings. Many of them were very proud. Some felt, यार ये किसान का लड़का, हम तो इतने पढ़े लिखे फैमिली से हम नहीं जा पाए, एंड ये किसान का लड़का है, इसके घर में किसको पढ़ाई तक नहीं आती और ये फौजी अफसर बन गया. So it was a mixed feeling. But as far as my friends and my well-wishers, it was a very, very, very big thing for us. और जब आपको आर्मी में सिलेक्शन हुआ, एक यंग लेफ्टिनेंट,
knocking at the doors of Indian Army and the door opens. First दिन कैसा रहा आपका? देखिए, पहला दिन ना आप भूल नहीं सकते उसको. यू कैन नेवर फॉरगेट योर फर्स्ट डे. 100%. यू आर ए फ्रेशर, नई उम्मीदें, नई सोच, नया ट्रेनिंग, नए सपने लेके आप एक यूनिट में जाते हैं. आपके सामने है बुजुर्ग, उनके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनके साथ ट्रेडिशंस जो होती है पलटन की या यूनिट की, वो ट्रेडिशंस है. उनके साथ एक जो यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है. ठीक है. उनके साथ अतीत है, हमारे सामने भविष्य है. ये दोनों का मिलन जब होता है, ब्यूटीफुल, तो पक्का थोड़ा ना थोड़ा अपेक्षाएं हमारी कुछ होती है, जो शायद वो सोचते हैं इन्होंने ये करना चाहिए, उनसे हमारी अपेक्षा होती है कि ये हमें ये बताए. तो वो थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ टाइम तक, जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तब तक एक अनजान सी जैसी नई बहू घर में आती है, उस तरह का माहौल होता है. वेरी नाइस. सर, यू नो, आपके बारे में हम जब रिसर्च कर रहे थे, आपका तो ऑफ कोर्स पूरा लाइक यू नो योर एंटायर लाइफ कैन बी मेड इनटू अ बुक, एन इंस्पिरेशनल बुक. बट व्हाट रियली स्ट्रक मी, एकदम शुरुआती तौर पे आ गया एकेडमिक्स. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने अपना ग्रेजुएशन किया साइंस में, देन यू वेंट ऑन टू डू योर मास्टर्स फ्रॉम IIT, उसके बाद आपने MBA किया जमनालाल बजाज से. लाइक यू नो, ये सब ऐसे पढ़ाई है, अगर ये सभी पढ़ाई को बंडल करके अगर आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, आपको पब्लिक भगवान बनाकर पूजेंगे. लेकिन नो, दैट्स अ फैक्ट. आई मीन, इट्स अ ड्रीम थिंग वॉट एवर एकेडमिक यू हैव स्टडीड, बट लिविंग, आई मीन ऑफ कोर्स यू आर लोडेड विथ योर डिग्रीज एकेडमिक, बट ये सबको लांद कर आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का चुना, डिसीजन लिया. वॉज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? देखो सतीश, यू हैव टू अंडरस्टैंड द HR पॉलिसीज. आप कॉर्पोरेट ज़्यादा जानते हैं, सिविल में जानते हैं. वहाँ क्या बोलते हैं, पहला क्वालिफिकेशन बोलते हैं, भाई मेरे को BTech चाहिए, मेरे को MTech चाहिए, मुझे MBA चाहिए. हाँ, ठीक है. correct. फौज क्या बोलती, भाई मेरे को रॉ मटेरियल सही होना चाहिए. रॉ मटेरियल मैं कब उसको चूज करता हूँ, यूथ 15 साल 16 साल. सो देयर दे स्पेंड मोर टाइम. SSB है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो ये नहीं देखते कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या है. क्वालिफिकेशन तो मैं करा दूंगा इससे, रॉ मटेरियल क्या मेरे पास है, एंड देन दे विल मोल्ड यू एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ओके. इवन व्हेन आई जॉइंड NDA, मैंने बोला यार अभी तो पढ़ाई खत्म हो गई, बट पढ़ाई तो मेरी लास्ट तक चलती रही. So they trained me, firstly, then I was chosen as a technical side candidate. Then I did my BTech. The army got me to do BTech. Wow. I did my specialization in radars. Then I went on to do my specialization in missiles. Then I did my specialization in certain kind of missiles, that is for Russian missiles and French radar system. I did my post-graduation in thin films and worked on Prithvi missiles. And that is the kind of thing we were. MBA I did after leaving the army. MBA I did because I said, चलो यार, पूरी जिंदगी में तो ओनली फौज नहीं देखना, फौज भी देखना, कॉर्पोरेट भी देखना, स्टेट गवर्नमेंट भी देखना, इट हैज टू बी कंप्लीट. तो तब मैंने देखा कि भाई चलो सिविल में जाना है ना, तो भाई कॉर्पोरेट में जाना है तो MBA चाहिए तुमको, वो ठप्पा. इसलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद MBA किया. छोटे छोटे बच्चे थे जो मेरे साथ MBA कर रहे थे. गुड. अच्छा, सो यू मीन टू से आपने जो ये BTech MTech वगैरह, तो जब आप फौज में थे तभी साइमल्टेनियसली पढ़ाई कर रहे थे? Simultaneously we did. Rather they give you a kind of a leave or training. It is part of your training, and it's a continuous training and upgradation in the defense forces. Okay. Super. You'll be surprised to know I have worked on radars, which we started with wall version. Then we went to transistor version. Then we went to IC version. And the latest radars are of AI version. The artificial intelligence, though I didn't work on that. But 3 generations of technology I had worked. So I needed upgradation every time. And I'm sure और एक महीने में मैं आपको कॉल करूंगा, बिजी रहेंगे, ये बोल के नहीं सतीश मैं AI वर्जन पे काम कर रहा हूँ करके. सर, लेकिन हम तो कॉमन मैन है, हम पिक्चर का रेफरेंस, बॉलीवुड का रेफरेंस देके ही बोलेंगे. आजकल
एक आध कोई पिक्चर आया था वॉर ये वो सब, और जहाँ पर पिक्चरों में दिखाता है वॉर, तो लाइक यू नो फ्रॉम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव हमको लगता है वाह हमको भी वॉर में जाना चाहिए, बट देन जो वो तो ठीक है फिर भी एक्टर्स है, बट पीपल लाइक यू जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया है, लाइक यू नो आई मीन हाउ वाज द एक्सपीरियंस वन, और जब भी फर्स्ट टाइम आपको जब भी वॉर में जाने का जब भी आपका नाम अनाउंस हुआ टीम में, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, एंड जितना तक अगेन आई सेड आई डिड माय रिसर्च, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के यू आर एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट 1984 का, सो अगर आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे तो। देखो सतीश, फर्स्ट आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉर, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन. Okay. War is full-fledged war where the complete army, navy, air force, the one country goes against another country in a war to win that war. Okay. First World War, second. The latest war is you can say Russia attacking Ukraine. It is going on for 3.5 years. उसके पहले वियतनाम और यूएसए का हुआ था, 20 साल चला. Not conclusive. These are wars, long drawn wars. ओके उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है, एनर्जी भी बहुत खर्च होती है, और सोल्जर्स भी बहुत, यू लूज लॉट ऑफ देम. अदर इज ऑपरेशन. एक होता है ऑपरेशन, फिर बोलते हैं सर्जिकल ऑपरेशन. ऑपरेशन कैसे, तुम्हारा पेट का खराब हो गया, किडनी का खराब हो गया, तो किडनी को ही तुमने रिपेयर करना है. तो तुम्हारा जैसे पंजाब इंसर्जेंसी हुई तो उसी को टैकल करना है, बाकी लड़ाई नहीं लड़नी किसी देश से. So Blue Star was an operation, it was not war. I had never seen any war because the last war was in 17. There are no wars fought by India after 1917. That is point number one. Now in Blue Star, I just 20 years old kid, you know. मेरी तो मूछें भी नहीं ठीक ढंग से आई थी तब. And बहुत जज्बा था कि चलो यार 4 साल ट्रेनिंग की, अब हमें हथियार लगाने का, मारने का, ये करने का वो मौका मिलेगा एंड ऑल दैट. पर जब हम ऑपरेशन में गए, पहले तो सबसे बड़ा दुख था कि भाई फौज में तो हमें सिखाया था कि दुश्मन के अगेंस्ट लड़ेंगे. ठीक है, ये तो अपने देशवासी थे, तो वो अपने देशवासियों के साथ लड़ना was little difficult to understand and digest. And I remember immediately when we moved from Meerut to Punjab, and Punjab is a bordering state, they used to respect फौजीज like anything. लोग आ रहे, तुम्हें लस्सी पिला रहे, खाना खिला रहे, दिल में हमारे हो रहा है यार इनको क्या पता है हम क्या करने जा रहे हैं. Okay, that was it. And then if you I remember, I'll tell you a very nice incident of 1984. There's one Nayak Tarsem Singh. We came to know that we had to just immediately within 8 hours we moved from Meerut to Amritsar, and we knew we were going for an operation. So he came to me and I was chosen as the team leader for the engineering team. Engaged. I said, okay, I'll go. I'm happy. And then the ladies putting tikka and giving me cakes and all. I was confused. I didn't know what is happening. There's one Nayak Tarsem Singh. He came to me and he said, साहब मेरा फैमिली जलंधर में पड़ा है, अभी एक बार ये ऑपरेशन चालू हो जाएगा, सब जगह कर्फ्यू होगा, ये होगा, कौन कहाँ होगा, किसका क्या होगा, किसी को पता नहीं. तो आपसे एक दरखास्त है कि मैं मेरी फैमिली को सेफ जगह अपने गांव छोड़ाता हूँ और आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अमृतसर में पक्का मिलूंगा. सेप्टिकल लेयर. एंड मेरी सर्विस कितनी हुई थी, 1 साल भी नहीं हुई थी. जून 83 में कमीशन हुआ था एंड हम जून 84 में जा रहे थे, तकरीबन 1 साल हुआ था. ठीक है, कोई बात नहीं. That is relationship, you know, person. And behold, by the time we reached Amritsar, this Tarsem Singh was there. And in 2014, there was a function in Pune. What is that? Some Natya Krida, Ganesh Krida Mandir. Some big show, totally packed. There's no place to sit. And I'm very fond of such shows. I was standing there. Suddenly, I saw one old Sardar, you know, white mooche and all. Okay, sab ab baitho. मैंने बोला यार तू क्यों मेरे को जगह दे रहा है, मैं खड़ा हूँ, तेरे को जगह मिली, तू बैठ जा. कहते नहीं नहीं साहब बैठो. देन ही सेज यू नो कि सब पहचाना मुझे. आई डोंट नो हु यू आर. कहते साहब मैं वही तरसेम सिंह हूँ जो ब्लू स्टार में आपने मुझे जलंधर भेजा था. So I mean I felt so good, you know. That is the best part of being in Fauj. Yeah, so like once a Fauji, always a Fauji. Absolutely, absolutely. Wow. रियली. सर जैसा आपने ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम लिया,
आई बिलीव अब बहुत सारे एंटी टेररिस्ट मूवमेंट्स, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी like you must have taken part. So when we speak about any movement or any activity which is anti-terrorist, जहन में सबसे पहले यादगार कौन सा मोमेंट आता है आपका, आतंकवादी के खिलाफ, Okay, हाँ. okay. See, we were in Baramulla, and Baramulla में क्या हुआ था? There's something called Fidain attacks. Those are suicide attacks. Suicide. Okay, we are located next to the divisional headquarters. These Fidains were probably given the target to be the divisional headquarters. Why should they attack a engineering unit? But it was last light, just 15 minutes before the darkness would fall in. And there are two, three terrorists. They got down from the ambassador. They started firing, and then we had to open fire. My boys, the engineering craftsmen, what we call them, soldiers. They're not so adept at military operations. Correct. But then that was operation, and as the officiating commanding officer, so I had to head it. We had no choice. I said, जो है यही बंदे हैं, इसी के साथ लड़ना है. And then we had one saw me at the gate. वो fellow, I mean, first casualty तो वही हो गया था. LMG खोलने के लिए बोला. There's a new recruit, who has never seen fire and who has probably never seen guys getting killed. And LMG, there are two, number 1 and 2, and the other person had gone down to get the ammunition, and he was firing. I was with him. He saw Mahipal kidhar hai, Mahipal kidhar hai, and he got scared and he started puking. So I had to give him one tight slap to bring him to senses. And then we fired, and then we died. And luckily, it was a great operation where the engineering EME Jawans killed both the militants there. Wow. तो उसमें क्या हुआ था, when we do something called combing operations, when the militants killed, we see, okay, चलो जो भी enemy था वो मर गया. Then we try to look at भाई अपने बंदों का क्या हाल है, and then we realized we had 2 fatal casualties में 2 मर गए थे. एक बंदा था नायक त्रिवेदी, I still remember him. तो सब इकट्ठे हो गए, नंबर काउंट किया इतना, फिर त्रिवेदी had come from Firozpur to collect some equipment. तो वो क्या हुआ था, ऐसी खिड़की थी, खिड़की के नीचे बैठा था वो, और वो मिलिटेंट्स ने ऊपर से उसको गोली मार दी. यहाँ गोली लगी थी उसके. So externally there was not injury, but then he was in bad shape. We took him to the MI room. Major Shubhra Prasad, one lady officer, very excellent. She said, sir, ये case तो serious है. Immediately we called for the helicopter, right, so that we could take him to Srinagar. That boy caught my hand like this, and he said, साहब मैं बच तो जाऊंगा ना. And you don't know what to tell him. I said, देख भाई, अभी यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता. तू इतना प्रॉमिस कर दे, तू यहाँ से श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, मरेगा नहीं तू, जान नहीं छोड़ेगा, उसके बाद तेरा कुछ नहीं हो सकता है. And then he won't leave my hand. I said, yeah, you trust me. And he trusted me. We put him in the helicopter. I still remember the name. There was a Colonel Rai who was the surgeon at the base hospital in Srinagar. I called him. I said, Rai, यार इस बंदे को मैंने promise किया है, इसको मरने मत देना यार. ठीक है. Then he went, and then on late night around 2:30, I got a call from Rai. He said, sir, हमने पूरा X-ray किया है, गोली अंदर पूरी तरह से घुमी है. He said, if I open him up, बचेगा नहीं. Then I said, what? I will keep him alive for 2-3 days. I said, ठीक है, उतना कर लो. Then we immediately called up his parents, we called up his wife, children, so he could be with his close ones for a day or 2, and finally he had to leave. So that incident, that grip, with the confidence with which he held, I can never forget that. So, I am becoming emotional. Now the point is, ये तो आपने एक इंसिडेंट बोला, तो इट्स लाइक वो मेरे लाइक इट इज काइंड ऑफ बोलते ना ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दौड़ रहा है, लाइक दैट्स द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैड. बट अगर आप लुकिंग बैक, टेल मी वन थिंग, डज
बीइंग इन द आर्मी, आप बोल रहे थे आपने किसी को थप्पड़ मारा टू गेट हिम बैक टू द सेंसेस, लाइक यू somebody held your hand and you knew for a fact that 3 दिन बाद ये दुनिया को अलविदा कर कर चला जाएगा. Being in the army makes you rough and tough, emotionless, या फिर like kind of devoid of emotions, or it makes you prepare for any kind of emotion that life throws at you. देखो भाई, once we are in फौज, we understand that this is life once given and it has to be lived to the best. ठीक है. I remember बारामूला हम गए, हमने बोला यार हम then कारगिल happened, सबसे पहले तो हमने सबका विल लिखवा दिया. Oh. You don't know what's going to happen. That doesn't mean we are afraid of death. Nothing like that. We are never ruthless. We are never ruthless. We love each other. We are the most sensitive people you can find. A soldier will make love the best, I suppose, to his family. He loves everyone. He writes letters. He calls them up. So we are not ruthless. But we accept that if we are born, we are one day going to die. And if we are lucky, we'll die in battle and we'll die for the nation. It will be great honor for us and for our family and for the Paltan that we are in. Sir, अगेन इन सब के बीच में आप तो वॉर फ्रंट में हो, आप घर से बाहर हो, इन सब के बीच में लाइक द अनसंग पीपल इन योर पर्सनल लाइफ आर योर इमीडिएट रिलेटिव्स, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन. हाउ इज इट दैट दे डेल्ट विथ लाइक उनके पापा, उनके हस्बैंड गोइंग ऑन टू द वॉर फ्रंट एंड यू कॉलिंग देम अप एवरी डे सेइंग दैट लिसन आई एम सेफ, लाइक डेज व्हेन आपके पास नेटवर्क नहीं हुआ रहेगा. How is it that they dealt with such situations? And how is it that you gave them that confidence, जैसा confidence आपने उस इंसान को दिया था? How is it that you gave your relatives, your loved ones a confidence saying that don't worry, I'm always there. अगर physically नहीं भी रहूँगा तो I'm still there with you. So what was your role of especially your wife and your children when उनके पापा और उनके husband घर से बाहर थे, देश को सर्व कर रहे थे? देखो क्या होता है ना, फौज में स्पेशली दोज फाइटिंग वॉर्स, okay, that's the infantry battalion, the armored battalions and the engineer battalions, they get recruited in a unit and stay there for 20-30 years. They are a family. Okay, they are the most what you call dear to you rather than your chacha, mama, taya and what all you call, because you maximum time you spend with them. Correct. Similarly, your wife, your children, they also form part of that family. Once you are away, okay, it's the responsibility of the wife of the commanding officer to ensure that all the families who are there are taken care. Okay, so they pep them up. We ensure there's a communication. We ensure that the children are taken care. If someone is emotionally down, the ladies or the people who stay behind, they take care of each other. They support them emotionally. They support them financially. They do every kind of help which no family can think of doing it. Okay. And you'll never find a Fauji family, saying no to their husband or pulling them back. They understand what the life is. When you marry a Fauji, you should know what you are asking for. So I mean, it's a great bonhomie. And thirdly, those people who do not come back, there's a confidence in the families that my Paltan is there, my unit is there, there's my Fauj, there's my government, which will take care of our families, which will take care of us. And touch wood, so far that bond is very strong. And that's what is helping us go ahead. Awesome. Great. Sir, आप अभी बोले when a person gets married to a Fauji, I believe the person should also get married to the duties of a Fauji. Correct? Absolutely. Yeah, the family. But आपने ये भी बोला था कि जब कोई फौजी वापस नहीं आता है तो उनके फैमिली आर काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड. दैट अगेन उन लोग सैकड़ों माइल, सैकड़ों किलोमीटर्स दूर हैं उनके रिलेटिव जो वॉर फ्रंट में है. बट देन सर, आप वो फौजी के साथ में हो, साथ में
आप आज सवेरे को आपके साथ चाय पिया होगा या फिर ब्रेकफास्ट खाया होगा, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पे, दोपहर को आपको पता चलता है वॉर फ्रंट में शहीद हो गया. सो हाउ डू soldiers, how do army people deal with the loss of a fellow soldier? Okay. I'll tell you an example, though I have not seen many operations, but as I told you about that Baramulla operation where Yes, we sir. killed the militants, we lost 3 or 4 boys. And when we got together and all, I'm not a experienced commanding officer of an infantry unit where you lose soldiers. But then I said, what do you do? You are deeply hurt inside. You're seeing Totally. these people. But the address to the troops was, देखो आज अपने दोस्त शहीद हुए हैं इस देश के लिए, इस पलटन के लिए, इस निशान के लिए. इनकी जो शहादत है हम खाली नहीं जाने देंगे, हम सबका इनका बदला लेंगे. हमारे जो साथी गए, and we pepped them up. We didn't cry. Wow. We don't cry when we lose. We feel bad, all right. And let me tell you, even in an operation, whether it's across the border or within the operation, we never leave our soldiers behind. Whatever may be the situation, we get them back under all circumstances. And that is our Indian Army is. I'm sure it's with the Navy and the Air Force also. Excellent. We don't cry. We don't cry. हम हमारे दुश्मन को रुलाते सर. पॉजिटिवली when जब भी आप कोई कॉम्बैट ऑपरेशन जीतते हो, when you come back home, what is the feeling? Like बचपन में हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, कभी एक एलोक्यूशन या ऐसे राइटिंग में फर्स्ट प्राइज मिल जाता था. स्कूल लेवल, इंटर कॉलेजिएट या स्टेट लेवल, वी वर लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बट देन आप लोग इंडिया के लिए काम कर रहे हो, इंडियन आर्मी के लिए. जब आप कोई ऑपरेशन सक्सेसफुली यू एग्जीक्यूट एंड देन यू कम बैक होम, व्हाट इज द फीलिंग? वो फीलिंग कैसा था? देखो सतीश, व्हेन यू कम बैक आफ्टर एन ऑपरेशन, जब घर जाते हो, अपने फैमिली से मिलते हो, अपने बच्चों से मिलते हो, अपने लोगों से मिलते हो, दिल में एक दुख तो होता है, यार जो आए नहीं उनका क्या हो. ठीक है, दिल रोता है. आई रिमेम्बर व्हेन वी केम बैक, सबके सामने तो रो नहीं पाए, पर जब घर आया बहुत रोया, दिल हल्का कर दिया. एंड बुरा ना मानो यार तुम, पर क्या होता है ना, जब हम आते बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, तुम्हें टीका लगाया जाता है, ये होता है वो होता है, बट दैट फॉरवर्ड डाइज वेरी सून. ठीक है, जो लोग जिनके घर वाले गए, जो अपंग हुए, उनका दुख तो हमेशा के लिए है. करेक्ट. हाँ, उसका किस हद तक अपना समाज अपना उत्तरदायित्व उनकी तरफ निभाता है. आज भी आप देखिए, जवान जो होता है उसका तो ये नहीं होता है लीव एप्लीकेशन डाल दिया, भाई मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ, आई एम गोइंग टू कम आफ्टर 8 days. उसका छुट्टी मिल गई, चला गया. उसके पास AC 3 टायर, AC 2 टायर का रिजर्व टिकट होता है, और उस होता बाथरूम के साथ में. हाँ, ये बड़ा गंदा लगता है. और हमें अभी हम तो कोशिश करते हैं, हम सबसे आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से विनती करना चाहते हैं कि यार सिर्फ जब कोई लड़ाई जीत के आ जाए, कुछ बड़ा काम करके आ जाए, उसको वो इज्जत देना अच्छी बात है. पर जब वो दुख में है, जब वो नॉर्मल ड्यूटी दे रहा है, अगर आप अपने जवानों को, अपने डिफेंस फोर्सेस को वो इज्जत नहीं दोगे, तो दूसरे देश कैसे देंगे? वो इज्जत दीजिए, उनका दुख समझिए. एंड दे डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड. दे डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड. यार उसको अंदर तो रहने दो, बाथरूम के साथ सोते हैं यार अभी भी. क्यों? नहीं, this is one point which I believe what you rightly said is through our medium, like अगर if at all the concerned governing authorities can do something, everything about it. I mean, boss, they deserve all the respect in the world, please. और वो भी fellow passengers, tomorrow if you see anybody, कोई soldier है या फिर anybody sleeping or sitting next to the bathroom, please offer your seat. इतना तो बोलते ना, railways ने provision है that at least you can make 2 people sit on the place of 1. So I believe आप काफी समझदार हो. And moving forward,
ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा. एंड एवरी आर्मी मैन विल बी प्राउड दैट ही इज एन आर्मी मैन व्हेनेवर ही इज ट्रैवलिंग. सर, एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूँगा. फॉर मी टू अराइव एट दिस क्वेश्चन, अराउंड 4-5 महीने पहले की बात है. हम जिस एरिया से गुजर रहे थे वहाँ पे कोई किसी ने किसी को छेड़ा, और वो लेकिन वो होते ना वो गुंडे लोग, तो वो लोग में आपस में मतभेद कुछ हो गया और ये लोग चाकू चूरा लेके आ गए रास्ते पे. ऑफ कोर्स दे वर लेटर टेकन बाय द पुलिस. बट हमारे फ्रेंड्स सर्कल में से एक ऐसा था जिसने वो देखा. वो हम बस पिक्चरों में देखते हैं, ये चाकू चूरा रियल लाइफ में लेके आके चालू हो गया उन लोगों का, जिसे हम गैंग वॉर, जैसे मिनी गैंग वॉर टाइप्स. दिस गाय वेंट इनटू अ ट्रॉमा एंड ट्रस्ट मी 2-3 दिन से उसको वही चीजें याद आने लगी. एंड फिर बाद में डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट वगैरह, फिर नाउ टच वुड, ग्रेस ऑफ गॉड इज ओके. वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेसिक चाकू चूरा. आप लोग ने गन देखा है, मिसाइल देखा है, AK-47 देखा, द लेटेस्ट प्रेस ऑफ अ बटन बूम द एंटायर कंट्री गोज. आपने ऐसे सब एडवांस्ड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स देखे हैं. सो लाइक यू नो, उस बंदे का तो 2-3 दिन में हालत ऐसा खराब हो गया था. बट देन व्हेन यू सी ऑल दिस, ये जो ट्रॉमा जिसे कहते हैं, ये आपको सताता है रात को या हॉन्ट करता है, या फिर सेम लाइक व्हाट आई सेड, जो आपका कलीग सवेरे को आपके साथ बहुत, आई मीन यू हैव बीन लाइक चड्डी बडीज फॉर इयर्स, एंड मॉर्निंग यू सेड लाइक यू नो, एंड दिस गाय सेज यार यू नो व्हाट, माय डॉटर इज गेटिंग मैरिड, आई वांट टू सी माय ग्रैंडचाइल्ड, एंड आफ्टरनून इवनिंग तक यू गेट द न्यूज़ इज नो मोर. तो ये सब ट्रॉमा हॉन्ट करता है आपको? देखो, हॉन्ट तो करता नहीं, हम भी आखिर इंसान है, भगवान तो है नहीं, हमें भी फर्क जरूर पड़ता है. जैसे समझ लो अभी हम JNK में थे, जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी, इतनी इंसर्जेंसी थी 90s में कि डम करके आवाज़ आ गया तो पता चला कहीं ID फटा. देन यू कम टू नो कि यार 3 बंदे गए, ये गाड़ी उड़ गई, उसमें ये इंजर्ड हो गया, ये मर गया, उसका सर ने खड़ 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 आवाज आ रहा है, तो कहीं ऑपरेशन हो रहा है. देन यू कीप वेटिंग होल नाइट, नींद थोड़ी ना आती है तुमको, तुम अपना अलर्ट है, फिर पता चला इधर ऑपरेशन हुआ, ये हुआ. And like that, you know, when I came for Kargil, I was promoted as a colonel, and then I was in Ambala. So हमने I left my family in Ambala. I said, चलो, I'll report to Baramulla, then take over the command, and then go back, and then probably bring my family or settle them down at a safer place. Unfortunately, Kargil happened, and then I could never go back for 8 to 9 months. My wife kept crying. He said, what about my children education? I requested my father-in-law to take my wife and children to my native town. They studied in Marathi medium for 2 years. And that was bad. So after that 7-8 months, when I went back for the first time, थोड़ा भी कहीं धमाका हो जाता ना, रात में नींद से उठ जाता था. I could never imagine ना, अभी तो घर में हूँ, अभी बारामूला में नहीं है, खड़खड़ हो जाता तो उठ जाता था मैं. The worst क्या हो, उसके बाद when I was posted to Pune, and then my children after 2 years studying in Marathi medium came, no school would give them admission. They said, भाई admission test करो, ये पास नहीं हो रहा है. I said, what nonsense. वो सबसे बड़ा दुख मुझे लगा था. Exactly. तो वो होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, दुख होता है. We're all humans. But we, with our families, everyone copes up with. I remember my son, you know, after his 10th, I told him, look, I am from IIT, तू भी अभी 11th 12th कोटा में जा ले and do IIT and all. He told me, Dad, 10 क्लास तक मैं 12 स्कूल घूम चुका हूँ, and now you expect me to do IIT. And I knew I was not doing justice to his academics. लगता है कभी, लगता है. Again, I would want to use the Bola Bhartiya podcast show as a medium to request all the academic institutions, please, sir के बच्चे लोग ही, they underwent that. Let, moving forward, ensure that no other army kid undergoes the kind of, like, you know, disparity, whatever sir spoke about. Let history, this kind of history, let it not repeat.
like they are there, we are there because they are there. So like हम उनके बच्चों के साथ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह वगैरह, like जो चीज़ें वांटेड है, जो चीज़ें अनवांटेड वी कैन ऑलवेज स्किप दैट. So if at all you can just spare a thought on this, it will be a huge favor on all of us. Thank you, Satish. You're most welcome, sir. Sir, मैंने अब जो अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है, it's not just to the academic institutions or otherwise, it's also to the common man. Speaking of the common man, what is it that आम आदमी should know about the armed forces? देखो, more than knowing about the armed forces, जिस जुनून से वो देश सेवा करते हैं, ठीक है, हाँ. We say for us the nation comes first, always and every time. The safety, honor of the nation comes first. Correct. The safety and honor of the troops we command, people who are working under you, comes next. Our personal safety, our personal honor, our ego comes last, always and every time. जब हम देश को प्राधान्यता दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? How can you just tear you know what you call seat in a railway? How can you burn a government vehicle? How can you build a government road, the national road, in a bad shape? Can't we give priority? Can't we feel proud of our nation? Can't we feel proud of our property? Our priority is ours first and nation's last. I think if the soldiers also thinks that no soldier is going to die, why should he die? Very true. उतना तो करो यार. Care for your nation. Care for national property. Respect your nation. Only on 15th August and 26th January taking a jhanda and roaming. That is not national pride. National pride is my nation's railway. This is the best. My nation's airlines. My nation's property. My nation's industry. If you can care for that, no one can stop us. Nation first. अगर ऐसा जिस दिन हो जाएगा, सुपर पावर के साथ हम सुपर पावर भी खेलेंगे. होगा, क्यों नहीं होगा? उम्मीदों पे दुनिया कायम है. सर, आप उम्मीद कर रहे हो, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ. अब मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर शो जब वायरल होगा, विच आई एम श्योर everybody should listen to what sir has said, and please गौर फरमाइएगा. Very important aspect what sir has spoken about. Sir, आर्मी के सफर के बाद you came back to being a civil person. So what was the toughest part coming back to a civilian life? You know, Satish, many people don't realize you're catching a boy at the age of 15 to 18. Young youth who can be molded. फिर उसका आप सैनिकीकरण कर रहे हो, मिलिटराइजेशन कर रहे हो. You're training him, you're coaching him, you're making him a soldier. And then he works for 15 years. ठीक है? क्योंकि तुम्हें लड़ाई के लिए तो यूथ चाहिए, जवान चाहिए. नाम भी हम जवान बोलते हैं. जवान. ठीक है, जवान चाहिए. उसकी जवानी खत्म होने को आ रही है, 35 साल हो गए. भैया बोलते हैं राम राम, जाइएगा आप सिविल लाइफ में. ठीक है, तब तक उसके फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो आप देखते, उसकी फैमिली को आप देखते, उसके बच्चों की पढ़ाई आप देखते. ठीक है, उसको क्वार्टर आप दिलाते हैं. हाँ, उसका आना जाने का क्या करना आप सोचते हो, छुट्टी कब जाएगा आप सोचते. एवरीथिंग यू डू. व्हाट यू वांट हिम इज कि भाई ये फौजी बन गया, देश के लिए लड़ेगा, देश के निशान के लिए लड़ेगा, जिसका नमक खरा उसके लिए लड़ेगा. उतना सिखाते आप उसको. ठीक है, सिविलियन से आपने उसको मिलिट्री सोल्जर बना दिया. 15 साल जब उसकी जवानी खत्म हो रही है, ठीक है, उसको आप सिविल में छोड़ रहे हो. देयर इज ए सिविल, देयर इज ए मिलिट्री. टू डिफरेंट लाइफ्स. सिविल में आता है, उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा. नौकरी लेनी है, उसको सिफारिश चाहिए. ठीक है, उसको कुछ एप्लीकेशन देना और कोई गवर्नमेंट स्कीम लेनी है, चंदा देना पड़ेगा. इसको मस्का मारना पड़ेगा, उसको मस्का मारना पड़ेगा. फौज में तो उसने एप्लीकेशन दे दिया, बात खत्म.
उसको पता है फौज उसका कर लेगी, तो आप उसका नागरिकीकरण कहाँ कर रहे हो? वेरी ट्रू। नागरिकीकरण कर नहीं रहे हो ना, एकदम आप सिविल लाइफ में उसको भेज रहे हो। उसके बच्चों को स्कूल नहीं मिल रही है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, हाँ? फिर वो गर्म हो जाता है। और सिविलियन क्या बोलते हैं? फौजी का दिमाग घुटने में। अरे तुमने उसको सिविल से फौजी बना दिया, फौजी से सिविलियन बनाया क्या? तो सबसे मुश्किल काम ये है, एक बार आप फौज की सर्विस करने के बाद आपको सिविल लाइफ में सिविल तरीके से जीना, आपको, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को जीना बड़ा मुश्किल होता है। किसी ने मुझे एक सवाल पूछा था, कहता सर, द ओनली वेलफेयर डिपार्टमेंट इन द होल कंट्री इज सैनिक कल्याण विभाग, ओके, जिसका मैं हेड भी रह चुका हूं। क्यों होता है? आप क्या सोचते हो सिर्फ फौजियों को देश प्रेम होता है, वही देश प्रेम करते हैं इसलिए उसको देते हैं? क्या एक इंडस्ट्री खड़ी करता है वो देश प्रेम नहीं करता है? आप अभी ये काम कर रहे हो, क्या आपको देश प्रेम नहीं है? हाँ, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, उसके पास देश प्रेम नहीं? मैंने बोला बिल्कुल है भैया, सब नौकरी कर रहे हैं, सबको देश प्रेम है। हमने कभी नहीं बोला कि हमने देश प्रेम का ठेका ले रखा है। पर आप एक बात सोचिए, वेटरन्स डिपार्टमेंट दुनिया के सब देशों में क्यों है? फौजी जब ज्वाइन होता है 16-17 साल का होता है, मिड लाइफ 35 में जवानी खत्म हो जाती है, उसके जो काम करने का टाइम खत्म होता है, तब आप उसको रिटायर कर देते हैं। मतलब उसको बाकी कब रिटायर होते हैं? 58-60 में। तो उसके 35 में जो तनख्वाह होगी वो 60 से आधे या उससे भी कम होगी, और उससे भी आधा उसको पेंशन दे रहे हो। राइट। उसको तनख्वाह आधी, उसको जॉब नहीं है, उसके बच्चे पढ़ाने, उसने बच्चे तो पढ़ाई खत्म नहीं हुई, उसके घर नहीं बनाया, उसकी प्रॉब्लम्स दुगनी है, तनख्वाह कम है, और आपके उसके साथ जो था वो तो आपने ले लिया, तो आप उसको मार्केट में कैसे छोड़ोगे भाई? कभी नहीं हटता। उसको रीसेटल करना, उसको कहीं जॉब देना, उसके बच्चों की पढ़ाई करना, उसको समाज में कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाना, वो जिम्मेवारी होती है सैनिक कल्याण विभाग की। और इसलिए सैनिक कल्याण चाहिए। नहीं तो आप सोचिए, एक सैनिक और एक टेररिस्ट में फर्क क्या है? एक दोनों ट्रेंड है, दोनों को गन चलाने आती है, दोनों को हथियार चलाने आते हैं, दोनों लड़ना जानते हैं। एक देश के लिए लड़ रहा है, एक देश के विपरीत लड़ रहा है। अगर देश के लिए लड़ने वालों को आप लोग आफ्टर नहीं करोगे तो उसका क्या हो सकता है, ये भी हमें सोचना पड़ता है। बहुत 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 जरूरी है ये मुद्दा। सर, आप you have led a lot of army troops and all that. वहाँ पर एक आप लीडर के तौर पे थे, बिकॉज यू गॉट इंडक्टेड इन आर्मी अर्ली इन लाइफ। तो थ्रू आउट योर लाइफ एज एंड व्हेन यू ग्रू, आप एक लीडर बन गए थे। Post your army life, you chose to lead a corporate life with a giant corporate breach candy. वहाँ पे भी you were a leader. So leadership in army and leadership in a corporate life or rather a non-army life, दोनों में फर्क क्या है? देखिए सतीश, there is a subtle difference of leadership, a defense leadership, military leadership, corporate leadership and a political leadership. Political leadership क्या कहती है? भाई मेरे को वोट मिलना है, कैसे भी मिले, देश का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। वो कब देखेंगे? जब तक उसको वोट नहीं मिलेंगे तो देश का कुछ नहीं कर सकता है। So his leadership is concentrate towards getting votes. या तो फ्री भी दे दो at the cost of other nation, या तो उसको दारू पिलाओ, so many other things which you and I know which we should not be talking, which will not be taken in the correct spirit. Okay, come to corporate leadership. हमने corporate leadership देखी है। भैया एक बंदा धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है बताइए आप? फैमिली के लिए। प्रॉफिट। मैंने आज एक बिजनेस खोला है, मैं तो बिना प्रॉफिट के लॉस के लिए तो नहीं कर रहा हूं ना, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो कॉर्पोरेट लीडरशिप क्या बोलती है? भाई तुम सीईओ है,
मेरे को कितना तू कमा के दे सकता है, ठीक है। राइट। मैं सोचता हूँ भाई मेरे अंडर में सतीश है, अ है, बी है, सी है, मेरी पहली प्रायोरिटी भाई इसको कितना निचोड़ के सस्ते में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल सकता हूँ। ये होती है कॉर्पोरेट लीडरशिप, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। हम फौजी कॉर्पोरेट लीडरशिप में जाते हैं तब हम दोनों का मिलन करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। पर फौजी लीडरशिप क्या बोलती है, भाई माय प्रायोरिटी इज द नेशन, माय प्रायोरिटी इज दिस एम्प्लॉय हु इज वर्किंग अंडर मी, माय प्रायोरिटी इज नॉट मी एंड माय फैमिली, ठीक है। आई हैव टू एंश्योर, हम कसम लेते हैं कि आखिरी दम तक हवा के रास्ते बाय एयरफोर्स, पानी के रास्ते या जमीन के रास्ते, आखिरी दम तक देश के लिए लड़ूंगा, और लड़के जीत नहीं सका तो खाली वापस नहीं आऊंगा, मर के वापस आऊंगा। और ये सिर्फ हम नहीं करते हैं, वी एंश्योर द पीपल अंडर आवर कमांड डू दैट, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ लीडरशिप, वन हैज टू डू इट टोटली। पर एक बात है यार, ये लीडरशिप में काम करने के बाद अच्छी नींद आती है, सुकून की नींद आती है, और जीवन सफल हो गया ऐसे लगता है। So true, sir. Sir, you have worked with retired soldiers' welfare with the Maharashtra state government, and also you have great good fortune of working with the then Defense Minister, Mr. Manohar Parrikar. So, who always till date is considered as one of the visionaries of India. Absolutely. तो सर हमने सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है, उनका इंटरव्यूज देखे हैं। सो अगर आप जो उनके साथ काम किए हैं, अगर आप कुछ मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं, लाइक यू नो योर पर्सनल एक्सपीरियंस विथ हिम, एंड प्लस स्टेट वेलफेयर के लिए आपने क्या किया। सी सतीश, क्या होता है ना, जब कोई जवान रिटायर होके आता है, as a civilian, the only job they think that he is suitable for is security guard. Am I right? Sad but right. Okay. देखो भाई, वो सोल्जर से तुम बोफोर्स गन चला रहे हो, 40 लाख का गोला वो दाग सकता है सही टारगेट पे, मिसाइल चला सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेन कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है, उसको उड़ाना कैसे क्या कर सकता है, नेवी की सबमरीन चला सकता है, सबमरीन में काम करता है। वो क्या सिक्योरिटी गार्ड कर पाएगा? वाइस वर्सा हो सकता है आपके सिक्योरिटी गार्ड ये काम कर पाएंगे? तो मुझे सबसे बड़ा दुख होता था कि भाई इसको सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगा रहे हो यार तुम, उसकी काबिलियत बहुत है। एक तो दो चीज, सिक्योरिटी गार्ड करके उसका ओहदा तुम कितना नीचे ला रहे हो। आज वो पूरा देश का एक प्रतीक था, देश की एक इज्जत था, और आज वो किसी होटल के बाहर खड़ा है, किसी सोसाइटी के बाहर में खड़ा है। दिल को चुभता था। तब के अपने चीफ मिनिस्टर साहब थे विलासराव देशमुख, उनसे हमने एक कंपनी स्टार्ट कराई थी, महाराष्ट्र एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन। वाह। हमने बोला यार तुम जॉब दे सकते हो क्या, दे दो, नहीं दे सकते हो, हम कोशिश करते हैं ना उनको देंगे, सही जॉब देंगे ना उनको, सिक्योरिटी गार्ड ओनली नहीं बनाएंगे। लकीली देश के डिफेंस मिनिस्टर साहब पर्रिकर साहब थे, हमारे दोस्त कुछ आईआईटी थे, पर्रिकर साहब आईआईटी के थे, तो हमारा एक कुछ टाइप का बॉन्डिंग हो गया था। हाँ। नहीं तो क्या होता है कि एक डिफेंस मिनिस्टर को स्टेट के डायरेक्टर को मिलना और आइडियाज शेयर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तब हमने क्या किया था, इंडस्ट्री को भी इकट्ठा किया। मेक इन इंडिया नया चल रहा था 2014 में, इट गेन मोमेंटम, यू नो, मेक इन इंडिया, एंड वी वांटेड टू डू देन। सो विद CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हमने एक बड़ा सेमिनार कम एक 1 डे इवेंट कराया। वी रिक्वेस्टेड मिस्टर पर्रिकर टू बी प्रेजेंट। यू विल बी सरप्राइज, मिस्टर कल्याणी फ्रॉम भारत फोर्ज अटेंडेड दैट, ही वॉज पार्ट ऑफ इट। Mr. Narona, Tata Motors head, he attended. Mr. Patil, L&T head, he attended. So all big industries attended. The total big industry, who and who was there. And we had convinced Mr. Parrikar also. We told him, boss, तुम लोग डिफेंस बनाना चाहते हो, yes, it's a great thing and it should happen.
Okay, but when you are HR now, you are making a gun. Okay, is hiring a engineer. Don't hire a diploma holder. Don't hire a B mechanical. He'll come, he'll learn for 2 years. वो सीखेगा भी नहीं. वो साल जंप करके ना उसको हायर जो पेमेंट है भागेगा. मेरे पास वो जवान है, वो कागजों पे 10th क्लास पास है, पर उसने 15 साल 20 साल 25 साल वो गन के साथ रहा है. उसको जितनी टेक्निकलिटीज गन के बारे में पता है किसी को नहीं. उनको आप एम्प्लॉय करो. लेट अस गेन फुल्ली एम्प्लॉय दिस एक्स-सर्विसमैन इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. And we, thanks to Mr. Parrikar, he helped us out. The industry also helped us out, and we could map the core competencies. आज हम बात करते हैं ना स्किलिंग की. भैया हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर को स्किल्ड काम दे दो. And it really worked well. So it's not that the soldiers are not technically sound, they're technically very much sound. और एक टेक्निकलिटीज की बात बताता हूँ आपको. समझ लो एक टैंक का मैकेनिक है. तुम्हारे स्कूटर मैकेनिक ने स्कूटर रिपेयर करा दी, ठीक है, 20 किलोमीटर के बाद खड़ी हो गई. आप क्या करोगे? वो मैकेनिक को गाली दोगे, ये दोगे, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते. आज हमारे मैकेनिक ने टैंक ठीक कर दिया. लड़ाई में टैंक चला गया, 45 टैंक इकट्ठे जाते, एक टैंक खड़ा हो गया. उसको छोड़ेगा तो कोई नहीं, क्रू तो पूरा जाएगा, मार देंगे. सबसे पहले वो टेक्निकल को उड़ाएंगे. तेरी वजह से ये गड़बड़ हुआ है. ही कैनॉट गो रॉन्ग. ही कैनॉट. 2.5 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ की मिसाइल उड़ा रहा है. टेक्निकली कैन यू गो रॉन्ग इन दैट? सो दे आर ट्रेन टू दैट लेवल ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी. यूज देम ना, यूज देम. एंड सो हैप्पी टुडे, you know, in Operation Sindoor, what technical level we had gone. A lot of contribution from the ex-servicemen fraternity also. Super. Sir, in your perspective, in your opinion, आपको लग रहा है कि is our nation supporting army veterans जितना होना चाहिए, जितना वो deserve करते हैं, या फिर there is still room for not improvement, there is still room for elevation as far as the support is concerned from the nation towards army veterans? देखो सतीश, when we talk of support from the nation, okay, what we are looking for veterans is re-employment, education for the veteran, education for his children, and those veterans who did not come back, overall support. Okay. To a large extent, we are getting from government as well as from the nation in terms of Flag Day Fund. And there are a lot of corporates who also come forward doing that. But what sometimes hurts me, you know, it's personal feeling. As a nation, whom do we take as our idols, and whom does the youth want to follow? Is it a Paramveer Chakra? Is it a corporate entity which has created more than lakhs and lakhs of jobs? Or is it a Bollywood celebrity who makes crores and contributes nil to the welfare of the society or as a nation as such? Or is it a sports person who entertains the country and the youth? हाँ, मुझे कभी कभी डर लगता है यार, क्या ये ट्रेंड सही है गलत है? समझ लो, आज एक परमवीर चक्र का इधर एक लेक्चर हो रहा है, ठीक है, उसी टाइम एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी इधर आ गया, 1 लाख की क्राउड यहां है. मैं यकीन दिलाता हूं सतीश, यूथ में से 20 के ऊपर भी यहां नहीं बैठेंगे. आपको लगता है ये ट्रेंड एक अच्छे देश के लिए सही है? वो कलाकारों के काबिलियत के बारे में मुझे कुछ भी शक नहीं है, वो खिलाड़ी उनके बारे में भी शक नहीं है, पर एक देश अपने युवाओं को किस दिशा में लेके जाना चाहता है, अपने युवा किसको अपना आदर्श मान के आगे जाना चाहते हैं, वो मुझे थोड़ा कहीं तो भी चुभता है. It's like a real army person speaking. Sir, on to that same note, आपके हर
बातों से, हर एक अल्फाज से आर्मी, इंडियन आर्मी झलकती है. सो राइट फ्रॉम द टाइम आप इंडियन आर्मी में पहला कदम लिए एंड टिल द टाइम यू गॉट रिटायर्ड, तो ये जो आर्मी लाइफ है, जीवन के प्रति आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया है या फिर आप वैसे ही हो जैसे आप थे? नहीं, फौज ने जीवन की सोच बदली है, जीवन जीने का तरीका बदला है, देश के प्रति बहुत प्यार है, जो मिला उसमें संतुष्ट रहने का जज्बा दिल में है. बच्चों ने भी, फैमिली ने भी कुछ करना चाहिए ऐसा लगता है. सही लीडर कौन है? एक गांव की औरत जो लोगों को हॉस्पिटल खोल के देती, उसको पद्मश्री मिलना चाहिए. और किसका? हमें लगता है उसको आजकल बड़ी मतलब स्टेटस मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है. और सही है या गलत है? और कोई गलत चीज होती है तो लड़ लेते हैं. लोग सोचते हैं यार इसका दिमाग खराब है, छोड़ देना यार, नहीं छूटता ना यार, कैसे छूटेगा. सही सही. ये है फौजी लोग बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है. और मर्द वन से फौजी ऑलवेज ए फौजी, और एक फौजी दूसरे फौजी को मरते दम तक साथ देता है. सो नाइस, सो नाइस. सर, इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, एक सेइंग है, यू कैन टेक एन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी बट यू कैन नॉट टेक an army from the officer. So now that you are a retired army officer, looking back in your rich and varied, diverse army life, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने बोले हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हमको और सुनने हैं. So what is that one thing या two things or the most prominent and significant thing that you miss about the army as well as the army life? देखो, फौज में सबसे बड़ी चीज है भाईचारा, कॉमरेडरी. भाई रिटायरमेंट तक मुझे पता नहीं था ये मुस्लिम है, ये एससी है, ये एसटी है, ये एनटी है, ये कम जाति का है, ये ऊंचा जाति का, ये ठाकुर है. मुझे इतना पता है यार, ये अपना पलटन का है. हमारी एक ही जात थी, फौजी है. वाह. हमारा एक ही घर था, पलटन. हमारा एक ही भगवान था, देश. यहाँ इतने भगवान है, हर एक के अपने भगवान, हर एक के अलग धर्म, हर एक के अपने सिस्टम. तो उसमें थोड़ा कहीं ना फौजी एक कंफ्यूज से हो जाते हैं, गुम सा जाते हैं. बहुत मिस करते हैं हम फौज को. वो भाईचारा, सर्वधर्म स्थल, सब इकट्ठे, ईद भी मना रहे हम, और गोरखा का दशहरा भी मना रहे, मराठों का गणपति भी मना रहे, दिवाली भी मना रहे, पोंगल भी मना रहे, और सेम लेवल पे मना रहे और सेम खुशियां ले रहे. वो एक हम मिस करते हैं. दूसरा क्या होता है, कोई प्रमोशन हो या कुछ भी हो, पॉलिटिक्स नहीं होता है. हमें राजकारण करना आता नहीं. जो बाहर देखते हैं, अरे अगर कोई, चलो ये फलाना एक अपॉइंटमेंट में आ गए, ये कौन सी जाति का है, इसको निकालो, उसको कुछ गलत काम करेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वो नहीं होगा तो अपना आदमी ले आओ, तो इसको निकालना, इसके पीछे लग जाओ, गलत चार्जेस लगाओ, इंक्वायरी लगाओ, ये करो वो करो, उसका मोरल पूरा डाउन करना. फौज में हमेशा हौसला अफजाई होती है. मोरल इज ऑलवेज ब्रॉट अप, नेवर पुल डाउन. नेवर पुल डाउन ए चैप. जो भी है जैसा है अपना ही यार, सबको इकट्ठा कर लेते हैं. हर किसी की खुशी में बाकी सब अपना खुश करते, पर अपने स्वार्थ के लिए हम किसी की बदनामी करना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसे काम राजकारण नहीं करते. और हमें राजकारण आता नहीं, इसलिए कई बार फौजी सिविल लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं होते. तीसरा एक बात है, देखो हम जब फौज ज्वाइन हुए थे सबसे फिट थे, फिजिकली फिट थे, फिटनेस पास करके आए, ट्रेनिंग किया और फिट रहे. पर फौज के दौरान -50 डिग्रीज पे भी काम किया, +50 डिग्रीज में भी काम कर रहे हैं. आखिर शरीर एक मशीन है भैया, उसका वेयर एंड टेयर बहुत होता है. ठीक है, सर्दी से तुम्हारे हड्डियां खत्म हो जाती है, गर्मी से तुम्हारे मांस पूरे गल जाते हैं,
और रिटायरमेंट आते हो ना आप, तो जो एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जिस तरीके से जितनी लंबी होती है, फौजी की नहीं होती, बहुत कम होती है। ये लोगों के दिमाग में ये गलत चीज है कि भाई फौजी लॉन्ग लाइफ जीता। मैं ECHS एक्स सर्विसमैन हॉस्पिटल देख रहा हूँ, उनको सफर करते देखता हूँ, उनके आर्थराइटिस कितनों के प्रॉब्लम है, किडनी के प्रॉब्लम कितने हैं, रेगिस्तान की धूल खा खा के किडनी का क्या हाल होता है। Your body is what you call ना, it's been utilized and misutilized. जोश में हम देश के लिए सबके लिए कर देते हैं, पर रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में कष्ट होता है, which you don't realize. So these are the things I think most I miss about Fauj. Wow, what an insight. कपिल शर्मा का शो हम सब देखते हैं, उसमें ना कपिल शर्मा ने एक पर्सनल इंसिडेंट बताया था जहाँ पे ही इज एसेंशियली एन एक्टर हु डज कॉमेडी। तो कपिल शर्मा बोले कि मैं जिधर भी जाता हूँ ना, लोगों के बीच में बोले ए जरा एक जोक सुनाना, जरा हंसा के दिखाओ। ओके, तो बोलते कभी कभी वो दैट बिकम्स इरिटेटिंग। मेरा प्रोफेशन है हंसाना, विच आई एम डूइंग इट to the best of my ability and you guys are laughing. That means I'm doing excellently well in my profession. But that does not mean that जिधर जाऊं मैं सबको हंसाता रहूं। मेरे को भी मेरा जिंदगी है, I have got my private space. तो drawing parallels from there, तो जब आप civilians के बीच में जाते हैं, like आपके सामने लोग आप पे इंप्रेशन मारने के लिए या फिर अपना औहदा बढ़ाने के लिए कि भाई देख मैं भी कितना जानकार हूँ, they resort to Google, they resort to some आधा अधूरा information and then they give out ज्ञान. So does that kind of irritate you, or does that kind of hold you back from such people, or does that kind of make you feel कि सामने वाले को बोल दें भाई listen, you still have a long way to go as far as information is concerned? How do you deal with such people? See, when we deal with this, there are 3 levels of people. There are the young boys, 8-10 साल के बच्चे यूनिफॉर्म पहन के सैल्यूट मारेंगे, तुम्हारे मेडल ये देख, बड़ा अच्छा लगता है यार। यूथ 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे ये और ग्रेजुएशन कर रहे, रिस्पेक्ट यू, दे वांट टू जॉइन फौज, दे रियली दिल से जानना चाहते हो। फिर एक स्टेज आती है ना, शादीशुदा लोग या एक बार प्रोफेशन में घुस जाते हैं, वेयर देयर प्रायोरिटीज देयर फैमिली एंड स्वार्थ भावी आ जाता है, तब उनका एटीट्यूड ही बदली हो जाता है। अरे फौजी से मैंने क्या लेना देना यार, मैक्सिमम ही इज गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि यार ये दारू की बोतल दे सकता है या नहीं दे सकता, उसको वो रेस्पेक्ट है। अरे पता है यार फौजी क्या होता है, अरे यार इसके साथ क्या दिमाग लगाना है यार। दैट इज द एटीट्यूडनल चेंजेस दैट व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ। इट इज nothing irritates, that's okay. We really love the children, we love to go to schools, we love to talk to children, we love to motivate the children, we don't take anything. Like I remember certain people requested me to explain to them Operation Sindoor and then what you call the Iron Dome concept and then BrahMos missile क्या होता है and drone warfare. We enjoyed it. They said how much आपका मानधन क्या होगा, कितना लगे? मैंने बोला कुछ नहीं. Wow. We love it. That's passion. अच्छा लगता है. So nice. सर आपने भी जिक्र किया था ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर तो ये तो हाल फिलहाल की बात है, बट देयर इज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो टाइम एंड अगेन इट कीप्स ऑन बैंगिंग, इट कीप्स ऑन नॉकिंग ऑन द डोर। और अभी सोशल मीडिया का इतना बोलते ना राइज एंड राइज ऑफ सोशल मीडिया है, सो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज लाइक एवरीवेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट पीओके। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है पीओके को रख के। सो सिंस किसी का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट, दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बट अपना अपना पर्सपेक्टिव है। किसी का पॉलिटिकल है, किसी का कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव है, किसी का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, या फिर किसी का जो भी पर्सपेक्टिव है। सिंस यू हैव काइंड ऑफ बीन दैट, डन दैट, you have seen both the sides of the coin,
you have lived both the sides of life, army man as well as now you are living a civilian's life with the army man inside you intact. What's your take on POK? देखो सतीश, I would not like to talk anything political, but there are two. I mean something what has been doing rounds in the social media. Yes. कि भाई ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद आपने POK क्यों नहीं लिया? तो वो पार्टी बोलती है कि भैया तुमने 1971 वॉर किया तब POK क्यों नहीं लिया? ठीक है, एक चीज समझ लो आप, 1971 वॉर था, ये ऑपरेशन है। कौन सी भी सरकार होने दो, वो वही काम करेगी जो देश के लिए सही होगा उस हालात में, उस टाइम पे। करेक्ट। ठीक है, लड़ाई करना या नहीं करना इज ओनली वन पार्ट ऑफ द डिसीजन। क्या अहमियत रखता है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में उस टाइम पे तुम्हारी कंट्री कहाँ है, तुम्हारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तुम्हारे दोस्त कब तक तुम्हारे साथ है, कब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्या तुम अकेले ही सबसे निपट लोगे या नहीं लोगे? ठीक है, अभी आप देखिए 71 में हम वेस्टर्न बॉर्डर में इंडो पाक वार लड़े थे। ठीक है, तब वर्ल्ड में 2 कंट्रीज स्ट्रांग थी, यूएसएसआर और यूएसए, बोथ और न्यूक्लियर कंट्रीज, कोल्ड वॉर चलते रहता था। ठीक है, पाकिस्तान ने अपने आइडिया 1948 से क्लियर कर दिया कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, कैपिटलिस्ट कंट्रीज यूएसए यूके के साथ रहेगा। सो ये दोनों कंट्रीज उसको फुल सपोर्ट देती, पैसों के लिए हो, आर्म्स के लिए हो, लड़ाई के लिए हो, कुछ भी। हमने पहले क्लियर नहीं किया था। ठीक है, पर 71 वॉर के दौरान तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये क्लियर कर दिया था कि हम रशिया के साथ रह गए। रशिया ने क्लियर कर दिया भाई लड़ाई हो, पैसा हो, कुछ भी हो, हम इंडिया के साथ हुए। ठीक है, तब रशिया इंडिया के साथ रहा जब तक हम बांग्लादेश लिबरेट किया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले भाई हम POK भी ले लेते, इसको निपटा लेते हैं। बट बाय देन व्हाट हैड हैपेंड, 16 दिसंबर तक क्या हुआ था, USA का 7th फ्लीट, न्यूक्लियर फ्लीट हैड एंटर्ड बे ऑफ बंगाल। उसको काउंटर करने के लिए रशिया की भी न्यूक्लियर पावर वहां आ गई थी। बोथ आर फेसिंग ईच अदर। तो मतलब अगर कुछ उसके बाद होता तो न्यूक्लियर वार होने के चांसेस थे या नहीं? राइट। रशिया ने बोला भाई वी हैव हेल्प्ड यू, यहां तक आपको मदद की हमने, इसके आदत मदद नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बोले यार छोटा सा काम है, करने दो। बोले देखो in 71 war the problem was of refugees. ठीक है, you are already a poor nation and 1 crore refugees you cannot sustain, so we supported you. यहाँ refugees की तो प्रॉब्लम है नहीं। ईस्ट पाकिस्तान में, नौ बांग्लादेश में वहां प्रॉब्लम थी। Those people wanted help from India. आज POK के लोग 71 में आपसे मदद मांग रहे क्या? Then how can you go and help them? Will not help you. Thirdly, योर होल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरा ईस्टर्न इंडिया में लगा है, उसको शिफ्ट करके आपको वेस्टर्न साइड में लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड POK में ऑलरेडी उनकी फौज पक्की बैठी है, द डिफेंडर्स आर स्ट्रांग, विल यू बी एबल टू विन? सो विदाउट रशिया एंड विथ ऑल दिस कंसर्न, वाज इट रियली वाइज टू गो एंड टेक POK? इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है, आज की स्थिति में आई है। Now we had demonstrated to the world what Make in India defense is. We showcased our defense production. We showcased our communication equipment. We showcased our drones production. We showcased our aircraft production. We are going for Kaveri. ठीक है, आकाश तीर जो कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिखाया हमने। And we are on the way to become a big nation. And this is a big business in the world market today, defense industry and selling of defense equipment. In this scenario, can you throw your country into a war with Pakistan just to take POK? Again, you will go back 10 years back. Is it a wise decision by any government? I'm not talking of this government or that government. It doesn't help us. How does it help? Abhi, forget about that. Russia has attacked Ukraine. Ukraine is how small, how big is Russia? 3.5 साल हो गए जी, कंक्लूजन हुआ कुछ?
तो तुम्हें क्या गारंटी भाई तुम्हारा कंक्लूजन हो जाएगा पीओके में? इससे अच्छा तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी ग्रोथ में करो, बड़ा नेशन बनो, देश को बड़ा बनाओ. आई थिंक दैट्स बेटर. I think that kills that POK point of view. That is my point of view, and I think it makes sense. Yes. I mean that's a very like army way of looking at, very neutrally and very rationally, so to speak. So thank you so much, and I'm sure that जैसा हमने promise किया था to get you more and more insights of Colonel Saab, जो I think and I feel that हमने वो promise पे खरे उतरे. And before we wrap up, I really want to thank you from the bottom of my heart and on behalf of the entire Bola Bhartiya team for sparing your precious time. I know you have been busy and but आपने अपना सही में कीमती समय निकाला हम लोग के लिए. बस उसके लिए हम पूरा बोला भारती की टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू सतीश. एंड बस एक प्रॉमिस ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा, जब भी आपको आपका इलस्ट्रियस लाइफ का कोई बायोग्राफी लिखना होगा, so allow me the privilege to do that. I mean, that's the least that I can do. And talking about doing something towards the army, and I feel and I'm sure and I'm really hoping that each and every one of you who has seen this podcast, please do like, share, subscribe. जितना होता है शेयर करें, बिकॉज ये जो मैसेज कर्नल साहब ने दिए थे अबाउट हाउ डू वी लुक टुवर्ड्स एनी आर्मी मैन और द चिल्ड्रन, और बहुत सारी बातें जो इन्होंने शेयर किया था, हमारे माध्यम से हमने जितने लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, वी विल डेफिनेटली डू दैट. वी विल ऑल्सो ट्राई टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल. बट देन आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि ट्राई टू शेयर दिस as much as possible with your family, friends, so that let's give everyone the respect that they rightly deserve. On that note, this is your host Satish Sundaresan signing off from Bola Bhartiya. Till the next episode we meet, तब तक के लिए आगे दीजिए. नमस्ते. जय. नमस्ते. Thank you so much. बहुत धन्यवाद सतीश जी. Pleasure. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you.